السلام علیکم فرینڈس. آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کینسر کے بارے میں. کینسر کیا ہوتا ہے, ٹیومر کیا ہوتا ہے, یا نیوپلازم کیا ہوتا ہے, یا نیوپلازیا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان سمپل ورڈس یہ جو کینسر ہوتا ہے اور نیوپلازیا ہوتا ہے یا نیوپلازم ہوتا ہے, یہ ورڈ سے ہی پتہ چلتا ہے. نیو کا مطلب ہوتا ہے نیو اور پلازم کا مطلب ہوتا ہے گروتھ, جو کہ ایک نئی گروتھ ہوتی ہے. سو ان سمپل ورڈس, کینسر اور نیوپلازم میں بھی ڈیفائنڈ ہے. اٹ از دا اب نارمل ماس آف ٹیشو. ٹھیک ہے, یہ ایک اب نارمل گروتھ ہوتی ہے کن کی, ٹیشوز کی یا سیلز کی. اس کو ہم کینسر کہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں آسان طریقے سے اگر ہم یہ ویڈیو پورا دیکھیں. دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے, پراپرٹیز کیا ہوتی ہے کینسر کی. اس میں ہوتی ہے ایکسیسو اب نارمل گروتھ آف سیلز. ٹھیک ہے, جو نارمل سیل گروتھ ہوتی ہے وہ تو ٹھیک ہے ہماری فیزیولوجیکل ایکٹیویٹی کے لیے, ہمارے جسم کے لیے. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں اب نارمل گروتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور ان کوآرڈینیٹڈ گروتھ ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے, گروتھ رکتی نہیں ہے. کس کے باوجود, اگر سٹیمولس جو گروتھ کو سٹیمولس کرتا ہے, جو سیلز کی گروتھ کو سٹیمولس کرتا ہے, سیلز کی گروتھ کو بڑھانے پر مجبور کرتا ہے, اگر اس چیز کو, اس فیکٹر کو ہم ریموو بھی کریں تو اس کے باوجود بھی یہ گرو کرتے ہیں. کون, یہ سیلز, یہ کینسر سیلز پھر کینسر کاز کرواتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے, یہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا ابھی. ٹھیک ہے, جب ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. یہ کیوں ہوتا ہے, یہ کینسر کیوں ہوتا ہے, گروتھ کیوں ہوتی ہے. یہ جو گروتھ ریگولیٹری ہوتی ہے, گروتھ ریگولیشن ہوتی ہے, یہ سارا ڈپینڈ ہوتا ہے ہمارے جینز پر. ٹھیک ہے, دس از بیکاز آف جینیٹک میوٹیشن. جب ان جینز میں آلٹریشن ہو جائے, ڈسٹربنس ہو جائے, تو اسی وجہ سے اب نارمل گروتھ ہوتی ہے اور گروتھ نہیں رکتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ جینز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھو ایک قسم کا جین ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پروٹو آنکو جینز. یہ کیا کرتے ہیں, یہ سٹیمولیٹ کرتے ہیں کس کو, گروتھ کو. کس کے گروتھ کو, نارمل گروتھ کو. اور ٹیومر سپریسر جینز, یہ کون سے جینز ہوتے ہیں کہ اگر جو یہ نارمل گروتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس کو سٹیمولیٹ کس نے کیا, پروٹو آنکو جینز نے, اگر وہ گروتھ ہو رہی ہے, نارمل گروتھ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, سیلز بڑھ رہے ہیں, تو اگر وہ زیادہ بڑھنے لگتے تو ٹیومر سپریسر جینز جو ہوتے وہ جلدی ہی ایکشن کرتے اور اس کو روکنے کی کوشش کرتے. بھائی آپ نے زیادہ نہیں جانا ہے, آپ نے مزید نہیں بڑھنا ہے. ٹھیک ہے, ہو گئے نارمل فنکشن. اور تیسری قسم کا جین جو ہوتا ہے پرو اپوپٹوٹک جینز. یہ کون سے جینز ہوتے ہیں, یہ وہ جینز ہوتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے زیادہ سیل گرو ہو جائے, ٹھیک ہے, نارمل ایک ہوتا ہے نارمل, اگر اب نارمل ہو بھی جائے, ٹھیک ہے, اگر یہ کام کم کرے, ٹھیک ہے, تو اس کی گروتھ زیادہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا کرتا ہے, یہ خود بخود کیا کرتا ہے, اپوپٹوسس, پروگرامڈ سیل ڈیتھ کرتا ہے, وہیں پہ اس کو کل کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے نارمل فنکشن. اور چوتھی قسم کا جین کیا ہے, اینٹی اپوپٹوٹک جینز. پھر جب یہ ڈیتھ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اب یہ ڈیتھ کنٹینیو کرتا ہے, اب یہ نارمل کو بھی ڈیتھ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو کیا کرنا ہے, اگر کوئی زیادہ ایکسیسو گروتھ ہوگی اسی کو یہ ڈیتھ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اس کو کون روکتا ہے, اینٹی اپوپٹوٹک جینز. یہ ایک اور قسم کے جینز ہوتے ہیں, یہ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی بس آپ کا کام ختم ہوا, اب آپ نے اور مزید کام نہیں کرنا ہے. یہ تھا نارمل فنکشن. اگر اس میں کوئی آلٹریشن ہو جائے, ٹھیک ہے, آلٹریشن ہو جائے, بدلاؤ ہو جائے, یہ سٹیمولیٹ زیادہ ہو جائے, یا کوئی جین کم سٹیمولیٹ ہو جائے, یا کوئی جین کم انہیبٹ کرے, یا کوئی جین زیادہ انہیبٹ کرے, تو اسی کی وجہ سے کیا ہوتی ہے, ایکسیسو یا اب نارمل سیل گروتھ ہوتی ہے اور کینسر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں ہم کیا اب کیا ہوتا ہے. اب آپ ایسے سمجھو, اگر پروٹو آنکو جین سے یہ بڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر یہ جین ہے نا, یہ اس کو کم کرواتا ہے. اگر یہ جین انہیبٹ ہوا, کم ہوا, کسی وجہ سے ڈسٹرب ہوا, تو یہ کیا بڑھتے جائیں گے. اگر پھر یہ جین بھی ڈسٹرب ہوا, کم ہوا, یہ اپوپٹوسس نہیں کریں گے, یہ اس کو نہیں ماریں گے, یہ بڑھتے جاتے اور اب نارمل ماس بناتے ہیں ٹیشو پر. کیا بناتے ہیں, ٹیشو پر. اس کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے یا ٹیومر ہوتا ہے. یہ کینسر اور ٹیومر میں کیا فرق ہے, یہ بھی ہم جانتے ہیں. پہلے یہ جین 4 آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب ٹیومر کیا ہوتے ہیں, یہ اب نارمل ماس آف سیلز ہوتا ہے. ٹیومر 2 قسم کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بینجن اینڈ میلیگننٹ. بینجن کیا ہوتا ہے, یہ ٹیومر ہوتا ہے, یہ لوکلائزڈ ہوتا ہے, یہ ایک پرٹیکولر جگہ پر رہتا ہے. اگر اللہ بچے میرے ہاتھ میں ٹیومر ہو جائے, یہ یہی پر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہی پر رہے گا, پھیلے گا نہیں. اس کو کہتے ہیں بینجن ٹیومر. یہ لوکلائزڈ ہوتا ہے اور پھیلتا نہیں ہے.
ये जो ट्यूमर है ग्रोथ रेट बिल्कुल कम होती है, रैपिड ग्रोथ रेट नहीं होती है, जल्दी नहीं बढ़ता है, बल्कि कम धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। और ये उतना डेंजरस नहीं होता है। कुछ एक्सेप्शन है, कुछ ट्यूमर होते हैं जैसे कि लिम्फेटिक सिस्टम का ट्यूमर होता है, वो ये एक्सेप्शन है, लेकिन जनरली हम बात करेंगे तो ये लेस डेंजरस होता है, ये उतना डेंजरस, खतरनाक, इन्वेजिव, जानलेवा नहीं होता है। ये इस ट्यूमर को हम किससे ट्रीट कर सकते हैं? इस ट्यूमर को हम सर्जरी से भी ट्रीट कर सकते हैं और ये ठीक हो सकता है। दूसरा है हार्मफुल, खतरनाक ट्यूमर, जिसको हम कैंसर कहते हैं, वो पर्टिकुलरली क्या होता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, उसी को हम कैंसर कहते हैं, ठीक है। कैंसर क्या है? मैलिग्नेंट ट्यूमर है। इसी के लिए हम वर्ड जो टर्म यूज करते हैं कैंसर, वो एक्चुअली क्या होता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये इन्वेसिव होता है, जानलेवा होता है, खतरनाक होता है, ठीक है। और वो स्प्रेड नहीं होता था, वो लोकल था, ये स्प्रेड होता है, ठीक है। ये स्प्रेड होता है, अगर यहाँ पे है, ये यहाँ पे भी स्प्रेड होगा सराउंडिंग एरिया में एक बात थी, लेकिन ये डिस्टेंट जो एरिया थे बॉडी के रीजन से, वहां पे भी स्प्रेड हो सकता है। ये मान लीजिए कि ये नॉर्मल सेल्स है, ठीक है, नॉर्मल सेल्स है, ये यहाँ पे कैंसरस सेल है, कैंसरस सेल है। जो ये कैंसरस सेल है, ये एक जगह थी, मैलिग्नेंट ट्यूमर की मैं बात करूंगा। अगर लोकलाइज्ड जो हो वो मेंजन ट्यूमर होगा, तो वो यहीं पर रह जाएगा, यहीं पर बढ़ जाएगा, ठीक है, यहाँ वहां नहीं जाएगा। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, जिसको हम कैंसर कहते हैं जनरली, इसमें क्या होता है, ये जो एक कैंसर सेल होता है, ये कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, कोलेजनेस, जिसके जो भी वर्ड आप देखोगे जिसके पीछे ASE होगा, इट डिनोट्स एंजाइम। ये कोलोनेजेस और प्रोटीएस एंजाइम रिलीज करता है, सिक्रीट करता है। तो वो क्या करते हैं, वो मेम्ब्रेन जो जहां पे होगा, ठीक है, उस मेम्ब्रेन के कोलेजन्स को, जो मतलब मेम्ब्रेन को बचाता है, ठीक है, प्रोटीन्स को खत्म करता है, डाइजेस्ट करता है, तो कमजोर करता है। फिर ये क्या होता है, फिर ये पेनिट्रेट होता है, ठीक है, फिल्ट्रेट होता है कहाँ पे? टिश्यू में, ठीक है। ये था एक जगह, स्प्रेड हुआ कहाँ? मतलब साथ ही में कोई एरिया होगा, यहाँ पे स्प्रेड हुआ, तो हो गया ये स्प्रेड, ठीक है, स्प्रेड हो गया, कैंसर सेल्स आए अब इसमें, ठीक है। इसको कहते हैं कि यहां से यहां आना, मतलब कि एक जगह, साथ ही में जगह ये पहुंचता है, ये कैंसर सेल्स, इसको हम कहते हैं इन्वेजन, ठीक है, इन्वेजन कहते हैं, जो कि सराउंडिंग एरिया है हमारी बॉडी का, वहीं तक ये महदूद है, वहीं तक पहुंचे, ठीक है। हो गया क्या? ये इन्वेजन। अब ये यहीं पे नहीं रुकता है, बल्कि ये करता है मेटास्टेसिस। ये मेटास्टेसिस होता है क्या है, कि ये जो ये कैंसर सेल्स है, ये स्प्रेड होते हैं कहाँ? एक होता है कि मतलब यहाँ पे था और यहाँ पहुंचेगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ये यहीं पर नहीं रुकता है, बल्कि ये डिस्टेंट एरियाज, अगर अल्लाह बचाए मेरे हाथ में है, अल्लाह बचाए किसी के हाथ में है, ये टांग पर भी पहुंच सकता है, ठीक है, टांग में भी हो सकता है, ये कैंसर सेल्स वहां पर पहुंच सकते हैं। इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है, कि ये डिस्टेंट रीजन जो हमारे बॉडी के, वहां पे भी पहुंच सकता है, किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू, क्योंकि जब यहां से निकलेगा ये ब्लड वेसल्स को भी पेनिट्रेट करेगा, ब्लड में पहुंचेगा, जहां जहां ब्लड पहुंचेगा वहां ये पहुंच सकता है, ठीक है। और उस वाले व्यंजन वाले ट्यूमर की ग्रोथ रेट कम थी, इसकी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, और ये इसको हम ट्रीट नहीं करते हैं सर्जरी से, ना ये ठीक होता है सर्जरी से। देखते हैं हम काजेस क्या होते हैं कैंसर के, ठीक। कैंसर, पता है, आपने जाना कि कैंसर पर्टिकुलरली हम मेलिग्नेंट ट्यूमर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये टर्म मेलिग्नेंट ट्यूमर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैंसर, ठीक है। अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ट्यूमर क्या है, कैंसर क्या है, ठीक है। तो काजेस क्या है कैंसर के? फिजिकल काज है, केमिकल काज है और बायोलॉजिकल काज है। फिजिकल काज क्या है? रेडिएशन, आयोनाइज एंड नॉन आयोनाइज। आप सभी 10+2 हो, आपको पता होगा कि आयनाइज एंड नॉन आयनाइज रेडिएशन क्या होते हैं, उसकी वजह से कैंसर होता है। स्मोक कंटेन करता है केमिकल, जैसे कि पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होती है उसमें, उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है, ठीक है। लंग्स का कैंसर हो सकता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अल्कोहल में भी वो केमिकल पाए जाते हैं जो कि काज कराते हैं, हमारा लिवर फैटी बनाता है, फिर फैटी लिवर के बाद वो हमारे लिवर में सिरोसिस करता है, और लिवर जब सिरोसिस हुई लिवर में, तो कैंसर काज करवा सकता है। हो गया, ये था फिजिकल काज, ये थे केमिकल काज। और बायोलॉजिकल काज क्या है? बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑन्कोजेनिक वायरसेस होते हैं, ठीक है। ऑन्कोजेनिक वायरसेस क्या करते हैं? ये जो वायरस है, उनमें उनका कंपोजिशन होता है ऑन्कोजीनस, जैसे कि हार्पस सिंप्लेक्स वायरस,
HSV ये क्या काज करवाता है, ये बायोलॉजिकल एजेंट होता है, ठीक है, बायोलॉजी ऑन्कोजेनिक वायरस होता है। इसमें क्या होता है, इस वायरस में होता है ऑन्कोजीन्स होते हैं, ठीक है, वो जीन जो रेस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए होते हैं, कैंसर के लिए होते हैं। ऑन्को का मतलब है स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड इज ऑन्कोलॉजी, ठीक है, ऑन्कोलॉजी इज स्टडी ऑफ कैंसर। तो ये क्या HSV जो ये वायरस होता है, हार्पस सिम्प्लिक्स वायरस, ये हमारी लिप्स में कैंसर काज करवा सकता है या हमारी सर्विक्स में कैंसर काज करवा सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम कैंसर के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। कैंसर के कितने टाइप्स होते हैं, कैंसर का टाइप बेस्ड ऑन टिश्यू ऑफ ऑरिजिन होता है। जहां पर एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए, जिस टिश्यू पर एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए, उसी के बेस्ड हम इसको क्लासिफाई करते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन करती है। जैसा कि समझो, अगर अल्लाह बचाए कैंसर कहाँ पे हुआ, इपिथेलियल टिश्यू में हुआ, किसी टिश्यू तो आपने पढ़ा है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, ठीक है, इपिथेलियल टिश्यू, स्क्वेमस इपिथेलियम, वो सब आपने पढ़ा है। अगर इपिथेलियल टिश्यू में कैंसर हुआ, अराइज हुआ इस टिश्यू से, तो इसको हम कहते हैं, इस वाले कैंसर को कार्सिनोमा, ठीक है। अगर किसी मतलब कि लंग टिश्यू में हुआ कैंसर, अल्लाह बचाए लंग के टिश्यू में हुआ, तो हम कहते हैं इस कैंसर को कार्सिनोमा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। या किसी और टिश्यू में हो जाए, लिवर टिश्यू में हो जाए, या किसी और टिश्यू में हो जाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इसको क्या कहते हैं हम, अगर किसी टिश्यू में हो जाए, इपिथेलियल टिश्यू में हो जाए, कार्सिनोमा। दूसरा एडिनो कार्सिनोमा, इपिथेलियल जब मॉडिफाई होता है तो ये ग्लैंड बनाता है, जब ग्लैंड में हो जाए कैंसर, उसको हम कहते हैं एडिनो कार्सिनोमा, ठीक है। सार्कोमा, ये आपने ये टर्म सुने होंगे, लेकिन मैं आपको डिफाइन करूंगा ये क्या है, ठीक है। सार्कोमा क्या होता है, अगर कैंसर का ऑरिजिन क्या हो, अगर कैंसर अराइज कहाँ से हो, मीजनकाइमा से, मीजनकाइमल टिश्यू जो होते हैं वहां से अगर कैंसर अराइज हो, उसको हम कहते हैं सार्कोमा, ठीक है। जैसे कि मीजोनकाइमा कहाँ पे होता है, हमारे बोन सेल्स में, ठीक है, अगर वहां से कैंसर अराइज हुआ तो हम कहते हैं ऑस्टियो सार्कोमा, ठीक है। फिर होता है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया आपने बार बार सुना है, बार बार सुनते हो और बार बार सुनोगे भी। इट इज कैंसर ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। ब्लड सेल्स क्या है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, उनका अगर उनमें कोई कैंसर हो जाए तो उसको हम कहते हैं ल्यूकीमिया, ठीक है। और लिम्फोमा में क्या होता है, लिम्फोमा इज द कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। अगर लिम्फेटिक सिस्टम से कैंसर अराइज होता है, उसको हम कहते हैं लिम्फोमा। लिम्फोमा कहते हैं किसको, लिम्फेटिक सिस्टम में। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या आता है, लिम्फ नोड्स आती है वगैरह वगैरह। अगर उसमें अगर कैंसर का ओरिजिन वो है एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू, एबनॉर्मल मास ऑफ सेल्स वहीं पे बनते हैं, कहाँ पे, लिम्फेटिक सिस्टम में, तो उस कैंसर को हम कहते हैं लिम्फोमा, ठीक है। अब आपने जाना कि कैंसर, इसके काजेज और इसके टाइप्स भी आपने जाना, और जीन्स के बारे में जाना है कि क्यों होता है कैंसर, जीन म्यूटेशन की वजह से होता है, जीन में अल्ट्रेशन होती है, इसलिए होता है। जीन में अल्ट्रेशन क्यों होती है, कि चाहे रेडिएशन की वजह से हो, या सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हो, या अल्कोहल की वजह से, ये आपने जाना, ठीक है। अब हम इसको कैसे डिटेक्ट करें और डायग्नोस करें, ठीक है। आपने पढ़ा है एक्सरे, ठीक है। एक्सरे 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है, और ये आयोनाइज्ड होता है। आयोनाइज्ड रेडिएशन हम इसमें यूज करते हैं और एक्सरे करते हैं उस एरिया का जहां पे कैंसर हो, ठीक है। लेकिन ये बात आपने अच्छी तरह से जहन नशीं करनी है, ये जो आयोनाइज्ड है, आयोनाइज्ड आपको बखूबी पता है कि ये क्या होता है, ठीक है। अब मैं हर एक टर्म को यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। आयोनाइज्ड रेडिएशन हम इसमें यूज करते हैं, लेकिन आयोनाइज्ड रेडिएशन जिसमें यूज की जाती है वो डेंजरस होता है, ठीक है। और CT स्कैन की वजह से, CT स्कैन से भी हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं और डायग्नोस कर सकते हैं। CT स्कैन क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। इसमें क्या होता है, ये भी एक किस्म का एक्सरे होता है, लेकिन ये 3D होता है, 3D व्यू, 3 डायमेंशनल व्यू, ठीक है। इसमें नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन होता है, ये भी टू सम एक्सटेंट डेंजरस होता है, लेकिन उतना डेंजरस नहीं होता है जितना आयोनाइज्ड रेडिएशन होता है जो हम 2D एक्सरे में यूज करते हैं। MRI की फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें भी 3D व्यू, 3D व्यू जो 3D व्यू होता है, ठीक है। इनमें दो, इसमें क्या है 2 डायमेंशनल, इसमें भी क्या होता है 3 डायमेंशनल व्यू होता है। और इसको हम यूज करते हैं पर्टिकुलरली अगर कोई अंदरूनी, मतलब क्या अंदरून में कोई कैंसर फंसा हुआ होगा या वहां पे हमें डिटेक्ट करना होगा, हम जनरली यूज करते हैं MRI को। ये इन दो थेरेपी से, इन दो डिटेक्शन टेक्निक से, डायग्नोस्टिक टेक्निक से सेफ है कौन, MRI, क्योंकि इसमें हम आयोनाइज्ड रेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नॉट मोर डेंजरस, जितना कि आयोनाइज्ड रेडिएशन डेंजर है, हमारे लिए खतरनाक है, जो कि हम एक्सरेज में यूज करते हैं। यह था डिटेक्शन एंड डायग्नोस्टिक। अब
हाउ टू डिटेक्ट बेंजन। अब हमने एक्सरे सीटी स्कैन से एमआरआई से डिटेक्ट किया कैंसर, लेकिन अब हमने यह जाना है कि ये बेंजन है कि ये मैलिग्नेंट है, ठीक है। बेंजन तो मतलब वो उतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है, कि मसला है लेकिन उतना जानलेवा उतना खतरनाक नहीं जितना मैलिग्नेंट है। अब हमने ये डायग्नोस करना है कि ये डिटेक्ट करना है कि ये बेंजन है कि ये मैलिग्नेंट है। हम क्या करते हैं कि जहाँ जिस पर्टिकुलर एरिया पे हमने डिटेक्ट किया यहाँ पे कैंसर है, वहाँ पे हम एक टिश्यू उठाते हैं, ठीक है, बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी टेक्निक करते हैं। जब हमने वहाँ पे एक टुकड़ा उठाया, ठीक है, वहाँ से जो उठाया उसको हम अंडर माइक्रोस्कोप रखते हैं, ठीक है, जो अफेक्टेड एरिया होगा कैंसर से उससे हम एक गोश्त का टुकड़ा जरा सा मान लीजिए आपके, वहाँ से उठाते हैं, बायोप्सी करते हैं, तो फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर मतलब पहले स्टेनिंग करते हैं, ठीक है, स्टेनिंग करने के बाद उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। अगर इसमें हमको सेल दिखाई दी और सेल के न्यूक्लियस की शेप नॉर्मल थी, उतनी एबनॉर्मल नहीं थी और डिफरेंशिएटेड थी, नॉन डिफरेंशिएटेड नहीं थी, तो हम कहते इसको बेंजन ट्यूमर। क्या कहते? बेंजन ट्यूमर। लेकिन अगर अल्लाह बचाए जो ये न्यूक्लियस होगा इस सेल का, कैंसर सेल का, वो एबनॉर्मल होगा और नॉन डिफरेंशिएटेड होगा, तो हम इसको कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या कहते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिसको हम कैंसर कहते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? हम सर्जरी करते हैं, ठीक है, और रिमूव करते हैं किसको? एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू को रिमूव करते हैं डायरेक्टली, हो गया इसका ट्रीटमेंट, सर्जरी, ठीक है। और सर्जरी के साथ साथ हम कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं? रेडियोथेरेपी, जिसको हम कश्मीरी कहते हैं कि इसको थेरेपी दे रहे हैं, इसको थेरेपी दे रहे हैं, ठीक है, सभी कह रहे हैं। तो ये क्या है? रेडियोथेरेपी। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम यूज करते हैं रेडिएशन को, ताकि ये जो कैंसर सेल है ये मर सके, ठीक है, ये मर जाए। बट ये पर्टिकुलरली किसके लिए एप्लीकेबल है? जहां पर लोकलाइज्ड ट्यूमर होगा। अगर अल्लाह बचाए किसी के हाथ में ट्यूमर, ये लोकलाइज्ड है, ठीक है, हाथ में ही है सिर्फ, तो हम रेडियोथेरेपी देते हैं, थेरेपी रेडिएशन यूज करते हैं, और वो उन कैंसर सेल्स को ये खत्म कर सकते हैं, मार सकते हैं, और वहीं पे किल करते हैं, ठीक है। तो रेडियोथेरेपी में यही होता है, ठीक है। ये पर्टिकुलरली लोकलाइज्ड ट्यूमर को, लोकलाइज्ड कैंसर को हम देते हैं। और कीमोथेरेपी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बयान किया, आपके सामने डिस्कस किया, कि अगर अभी आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा कि कीमोथेरेपी होता क्या है। इसमें हम यूज करते हैं ड्रग्स को, लाइक सिस्ब्लास्टिन वगैरह, रिफाम्पिसिन, इन ड्रग्स को हम यूज करते हैं, ताकि ये जो कैंसर सेल है, ये जो ग्रोथ होती है अबनॉर्मल, ये इनहिबिट हो जाए, ये रुक जाए। लेकिन इसमें साइड इफेक्ट ज्यादा पाए जाते हैं। क्या मतलब? कि बोन मेरो डिप्रेस होता है, सप्रेस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से एनीमिया होता है, जिसकी वजह से फिर एनीमिया हो सकता है। अब मैं यहाँ पे आपके लिए एक और पॉइंट इंक्लूड करूंगा, कि अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आया होगा कि कैंसर सेल्स को भी न्यूट्रेंट और न्यूट्रिशन की, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो कैसे उनको मिलता है, ठीक है, वो कैसे उनको मिलता है, ठीक है। वो ऐसे मिलता है कि उसमें एक प्रोसेस होती है एंजियोजेनेसिस, ठीक है। एंजियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? एंजियोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेसल्स। जो नई वेसल्स होती है वही बनती है एंजियोजेनेसिस कंडीशन में, जब कैंसर होता है, ठीक है। तो एंजियोजेनेसिस प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है कि नई वेसल्स बनती है। एक होती है हमारी नॉर्मल वेसल, जो है, अगर हमारे अंदर 1000 वेसल्स है, ठीक है, ये नॉर्मल है। अब जब क्या अल्लाह बचाए किसी के अंदर कैंसर होता है, तो कैंसर सेल्स को न्यूट्रिशन चाहिए, तो इनके अलावा और भी वेसल्स बनते हैं। वो वेसल्स क्या काम करते हैं? उस प्रोसेस ऑफ वेसल्स को हम क्या कहते हैं? एंजियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेसल्स इन इन कंडीशन ऑफ कैंसर। तो वो कंपीट करते हैं, वो लड़ते हैं कि नॉर्मल वेसल्स के साथ, और वहां से क्या करते हैं काम? वहां से डायपेटिस करते हैं, वहां से ब्लड को निकालते हैं, ब्लड में ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, और अपनी वेसल्स में लेते हैं, और फिर वो कैंसर सेल्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं और ऑक्सीजन भी पहुंचाता है। तो क्या फॉर्म होता है? किसकी फॉर्मेशन होती है? न्यू वेसल्स की, जिसको हम कहते हैं एंजियोजेनेसिस। ये मैं आपके लिए इंक्लूड करूंगा। तो आपने अच्छी तरह से जहननशी किया होगा, मुलाहिजा किया होगा, समझा होगा, दूसरों को भी समझा सकते हैं कि कैंसर क्या होता है, ट्यूमर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, काजेस क्या होते हैं, और ये जो जीन अल्ट्रेशन होती है ये किस वजह से होती है। फिजिकली भी होती है ये, जैसे कि रेडिएशन की वजह से, या केमिकली, जैसे अल्कोहल, जैसे स्मोकिंग की वजह से, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की वजह से, या बायोलॉजिकली भी हो सकता है, जैसे कि हार्पस सिम्प्लेक्स वायरस, जो कि लिप कैंसर हमको करवाता है। ये था एक मुख्तसर सा शॉर्ट और ब्रीफ वीडियो कैंसर और ट्यूमर के बारे में। होप कि आप सभी ने ये समझा होगा, ठीक है। अगर समझा होगा तो इसको शेयर कीजिए, ताकि बाकी भी सिंपली इसको समझ सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।